Good morning, dear students. So, today we'll be studying the second chapter of chemistry, that is matter around us pure? So, as you all have studied in chapter 1, matter in our surrounding, that what is matter all about? आप सभी ने चैप्टर 1 में पढ़ा ही है कि जो हमारा मैटर है वो क्या है, किन चीज़ों से मिलके बनता है. तो आइए एक क्विक रिकैप करते हैं दैट व्हाट इज मैटर. एंड as you all know that anything that occupies space and have some mass is called matter. यानी कोई भी चीज़ जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका कुछ मास होता है वो क्या कहलाती है? आपका मैटर. फॉर एग्जाम्पल anything, whether it's rock, sand, elements, water, table, chair, stick, anything around you that is having some mass and it is occupying some space, it is known as matter, right? So moving ahead with this, in this chapter we will be saying that in how many parts the matter is being categorized and is this matter the pure one or the impure one. तो देखिए आप इसमें देख सकते हैं, here is a schematic representation of the different types of matter in which it is clearly been shown कि matter दो parts में divided है. The first one is your pure substances, second is your mixtures. ठीक है. प्योर सब्सटेंसेस आपके वो सब्सटेंसेस होते हैं जो खाली सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल से बनते हैं. किन से? सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है. एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस आपके वो होते हैं, दोज आर फॉर्म फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स. ये आपके बनते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल से. इनको इम्प्योर सब्सटेंस भी कहते हैं एंड ये फर्दर आगे जाके कैटेगराइज होते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया प्योर सब्सटेंस के सबसे अच्छे एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल शुगर, सॉल्ट, ये सब आपके क्या है? प्योर सब्सटेंसेस. बिकॉज इन शुगर द पार्टिकल्स आर ओनली ऑफ शुगर. ओके. एंड एज यू कैन सी इन इम्प्योर सब्सटेंसेस लाइक मिक्सचर्स, फॉर एग्जांपल सैंड में जो भी पार्टिकल्स होंगे it will be of sand, rocks, fine sand, gravel, इन सब का मिक्सचर होगा. that is why it is known as impure. okay. now further, as you can see, the pure substances and the impure, which is known as mixtures, is been divided into two more category. First is your elements, second is compounds. Similarly, in mixtures it has been divided in homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. ठीक है. प्योर सब्सटेंस आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हुए हैं. फर्स्ट है आपका एलिमेंट्स, दूसरा है आपका कंपाउंड्स. उसी तरीके से जो आपके मिक्सचर्स हैं वो भी दो पार्ट में डिवाइड हुए हैं. फर्स्ट है आपका होमोजीनियस मिक्सचर, नेक्स्ट है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ओके. Now we'll see one more thing, that further your elements are being divided into three categories. First is metals, non-metals and metalloids. Okay. And as you can see in this mixtures also, homogeneous आपके true solutions में divide हुए हैं, whereas heterogeneous mixtures आपके colloids और suspension में divide हुए हैं. ठीक है. तो हम इस चैप्टर में बेसिकली यही पढ़ने वाले हैं दैट व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस, व्हाट आर इम्प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये मेटल्स, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़, व्हाट आर कंपाउंड्स, व्हाट आर होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, एंड हाउ व्हेन दे आर फर्दर डिवाइडेड, then what are true solutions, colloids and suspensions. And later on we'll also see some separation techniques which can be used to separate the substances. Okay. So let's one by one let's see
that what is in the chapter. I hope this is clear to each one of you. Okay, now moving ahead, let's see what are pure substances. A pure substance is a one in which it is made up of only one kind of particle. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी था कि pure substances क्या होते हैं, जो खाली single kind of particles से बनते हैं, and they are further being divided into elements and compounds, right? For example, as you can see, this is a platinum, और आप देख सकते हो it is a pure substance because it is having all the particles of platinum only, right? And they are being further divided into elements and compound. So this is your pure substance because it is having only one kind of particles. Okay, now moving to the next part, which says that pure substance are being categorized into two types. First one is elements and the next one is compounds. So first we will see what are elements, then we'll move on to compounds, right? तो देखिए एलिमेंट्स जो होते हैं आपके, इट इज़ एन type of substance which is made up of only one kind of particle. Okay, इसके बारे में और समझेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है that what are atoms, because all the elements are made up of atoms and an element is made up of only one type of atom. And as you know that atom is the tiniest part, यानी कि एटम क्या होता है, आपका सबसे छोटा हिस्सा, इट इज़ नोन एज एटम. एंड जब यही एटम कंबाइन होते हैं दे फॉर्म एन एलिमेंट. ठीक है, जब यही पार्टिकल्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं एटम्स के, तो क्या बनता है, एक एलिमेंट, राइट? एंड the atom is so small that it cannot be seen from the naked eyes, so it has been seen with the help of a microscope. Okay, now moving ahead, the smallest amount of an element, as you can see, it is your atom only. यानी कि एटम्स को ही कंबाइन करके आपका एलिमेंट बनता है. जब तक आपके atoms combine नहीं होंगे, your element cannot be formed. Okay, so different atoms make up different elements giving them different property. and जो आपके atoms होते हैं वो different elements combine करके बनते हैं. and as you can see, for example, suppose talking about the element hydrogen, तो हाइड्रोजन में जो एटम्स होंगे वो हाइड्रोजन के ही होंगे, हाइड्रोजन के अलावा और कोई किसी के नहीं होंगे. ठीक है, सो हाइड्रोजन इज बीन फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग द स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स विच आर नोन एज एटम, राइट? नाउ मूविंग अहेड एंड फर्दर नोइंग अबाउट एलिमेंट्स, वो आपने जाना. अब देखिए, एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि सिर्फ एक काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बनता है, इसीलिए आप फर्दर इसको स्प्लिट नहीं कर सकते हैं दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में. जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन. अब देखिए आयरन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आयरन, इसका सिंबल है Fe एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आयरन. सो दीज आर द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन द आयरन स्ट्रक्चर. तो आप देख सकते हैं
कि किस तरीके से दे आर बीन क्लोजली अटैच टू ईच अदर्स दैट दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, और आप इसको दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये होते हैं आपके एलिमेंट्स। ओके, तो बेसिकली एलिमेंट्स आर दोज सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू two or more simpler parts because they are being formed from one kind of particles, right? Now moving ahead and knowing some more points about elements, that elements are pure substances which are made up of only one type of atom। जो आपको मैंने अभी बताया था कि ये प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो खाली एक तरीके के एटम्स को मिलके बनते हैं। एंड देयर आर 90 एलिमेंट्स दैट मेक अप ऑल द मटेरियल्स ऑन द अर्थ। थर्ड पॉइंट सेज दैट एवरी एलिमेंट हैज़ इट्स ओन सिंबल विच इज़ अ टाइप ऑफ कोड और शॉर्ट हैंड फॉर द एक्चुअल एलिमेंट इटसेल्फ। जैसे कि देखिए, हाइड्रोजन इज द नेम ऑफ द एलिमेंट but the symbol is H. Okay, similarly helium symbol is He. Next thing goes oxygen symbol O, nitrogen N। तो ये क्या है, इनके सिंबल्स हैं एलिमेंट्स के, ठीक है। एंड फर्दर आपके यही एलिमेंट्स दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, इनफैक्ट तीन में होते हैं। फर्स्ट वन इज योर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ओके, सो ऑल द मेटल्स दे हैव अ डेफिनेट बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज एज यू नो दैट metals are hard and they have different various properties which you will be studying in the chapter ahead. Okay, now with this let's move ahead, and I hope this is clear to each one of you. This is the representation of the periodic table or your periodic table, in which the elements are being arranged according to their atomic number. And you can see in this that this is the symbol of the element. आप देख सकते हैं H, Le, Be, Na, Mg, K, Ca, ये सब क्या है, जो इस तरीके से ऊपर लिखे हुए आपको अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं, ये आपके एलिमेंट के सिंबल्स हैं। एंड जो नंबर आपको दिख रहा है इनके नीचे लिखा, इट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। क्या है ये? इट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, राइट? एंड इन दिस यू कैन सी दैट द metals and non-metals are being also arranged, and this is the series of the most reactive metals and it is the most reactive non-metals। ठीक है, इसी तरीके से इसमें और भी चीज़ें होती हैं जो कि आप फर्दर अपने आगे वाली क्लास में जानेंगे, राइट? नाउ मूविंग अहेड, मैंने आपको जो अभी बताया था दैट व्हाट आर द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, लाइक एल्यूमिनियम इज द नेम ऑफ द एलिमेंट एंड द सिंबल फॉर एल्यूमिनियम इज Al। सिमिलरली ब्रोमीन इज द नेम ऑफ द एलिमेंट, इसका सिंबल है Br। उसी तरीके से कैल्शियम Ca, फ्लोरीन का सिंबल F, गोल्ड का सिंबल Au, हाइड्रोजन का सिंबल इज H, आयरन का सिंबल Fe, मैग्नीशियम इज Mg, नाइट्रोजन इज N एंड ऑक्सीजन इज O। तो ये आपके कुछ सिंबल्स हैं एलिमेंट्स के जो कि आपको याद रखने हैं, एंड दीज आर वेरी बेसिक।
Okay. Further, on moving ahead, we'll see that some of the elements are given in this slide. As you can see, कुछ elements दे रखे हैं जो कि आप इन pictures में देख सकते हैं, जैसे कि calcium. This is calcium. This is your zinc element. ठीक है. This is chlorine, Cl. It is iodine. तो ये आपके क्या हैं? ये आपके एलिमेंट्स हैं. ओके, इज दैट क्लियर? राइट, नाउ मूविंग अहेड, आई होप द एलिमेंट्स आर क्लियर टू यू ऑल कि क्या होते हैं एलिमेंट, सिंबल्स क्या होते हैं इनके, एटॉमिक नंबर भी मैंने आपको बताया. ठीक है. नाउ मूविंग अहेड विद दिस, as I have told you that elements are being divided into three major parts. First is your metals, second your non-metals, and third is your metalloids. आपने देखा एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे दे आर फर्दर बीन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. फर्स्ट इज़ योर मेटल्स, सेकेंड इज़ योर नॉन मेटल्स, एंड थर्ड वन इज़ योर मेटलॉइड्स. अब हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में. उससे पहले लेट मी ब्रीफली टेल यू दैट मेटल्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर हार्ड, विच आर मेलेबल, विच आर डक्टाइल, एंड सिमिलरली नॉन मेटल्स आपके वो सब्सटेंसेस होते हैं विच आर सॉफ्ट, विच आर नॉट मेलेबल, विच आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और इन सिंपल टर्म्स यू कैन सी दैट जो नॉन मेटल्स होते हैं आपके, वो मेटल से जस्ट ऑपोजिट प्रॉपर्टी शो करते हैं. ठीक है. एंड जो आपके मेटलॉइड्स होते हैं, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं या वो एलिमेंट्स जो आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की बीच की प्रॉपर्टी शो करते हैं. दे फॉर्म एन इंटरमीडिएट स्टेट. इंटरमीडिएट स्टेट यानी इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी. ओके, ये एक इंटरमीडिएट स्टेट फॉर्म करते हैं इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टीज़, यानी कि ये कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की भी शो करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की. राइट, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज सेमीकंडक्टर्स, बिकॉज दे आर कंडक्टर्स बट टू नॉट दैट एक्सटेंट. राइट, इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग अहेड विद दिस, let's see some of the physical properties of metals and non-metals quickly. As you all know that metals are solids except talking about mercury. Okay, likewise metals are hard, leaving an exception of sodium and potassium, because sodium and potassium are soft metals which can be cut down with the help of knife. Similarly, metals have metallic luster because they are lustrous, they have shine in them. Likewise, metals have high boiling points and high melting points. Okay, metals are malleable. It means आप metals को convert कर सकते हैं sheets में. metals are ductile. metals का ductile का मतलब कि आप metals को wires में भी you can draw the metals into wires. Okay, and as you can see that metals are good conductors of heat and electricity because they allow heat and electricity to pass through them. Similarly, metals are sonorous, which produces sound. Likewise, you can see in non-metals also, and as you can see, non-metals always show the properties just opposite to metals. जैसे कि आपने metals में पढ़ा, metals solid होते हैं, तो आप देखेंगे non-metals आपके solid भी हो सकते हैं, liquid भी या gases. Like non-metals आपके brittle होते हैं except diamond which is the hardest one.
Similarly, non-metals do not have luster and they are dull. Non-metals have low melting and boiling points. Non-metals are not malleable. Non-metals are not ductile. They are not a good conductor of heat and electricity except graphite. नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस, यानी कि आप देख रहे होंगे कि जो आपके नॉन मेटल्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज मेटल से जस्ट ऑपोजिट हैं, राइट. एंड देर आर सम मोर प्रॉपर्टीज विच आर गिवन इन योर बुक. यू कैन रेफर टू योर बुक दैट जो आपके मेटल्स होते हैं बिकॉज दे आर हार्ड एंड दे आर सॉलिड्स, तो इनकी टेंसाइल जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स. Okay, whereas your non-metals have low tensile strength. And on talking about the color of metals, metals they have gray and silver color, but आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं they are available in varied colors. Okay, and in metals there is an exception of copper and gold because gold is your yellowish in color. Similarly, talking about copper, copper is brown, reddish brown in color. Okay, so this was all about the properties of metals and non-metals, right? And on moving further, you will be studying about compounds. जैसा आपने अभी metals के बारे में जाना, अब हम आगे बढ़ते हैं. I hope metals एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज सिमिलरली एलिमेंट्स क्लियर हुए होंगे आपको. अब हम समझते हैं व्हाट आर कंपाउंड्स. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट आर कंपाउंड. सो कंपाउंड इज अ सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट्स टुगेदर. यानी कि जब हम कोई भी दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा एलिमेंट को कंबाइन करते हैं केमिकली, व्हाट वी गेट अ कंपाउंड. हम इसको जानेंगे एग्जाम्पल से भी कि कैसे ये होता है. एंड व्हाट हैपन्स व्हेन कंपाउंड्स आर फॉर्म, दे लूज देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज एंड प्रोड्यूस सम न्यू सब्सटेंसेस. जैसा कि आपने देखा कि जब एलिमेंट्स कंबाइन होंगे तो आपके कंपाउंड्स बनते हैं, इन विच कंपाउंड्स दे फॉर्म अप सम न्यू सब्सटेंसेस. ओके, compounds can be broken down into simpler type of matter by chemical means but not by physical means. यानी कि जो आपके compounds हैं they can be broken down into simple substances by chemical means and not by physical. Okay, they have different properties from its component elements. And what happens when compounds are formed, there is the energy is released or it is being absorbed, right? So this was some basic information about compounds. अब हम जानते हैं ये बनते कैसे हैं and what is this statement saying that elements are combined together then the compound is formed. So students, as you can see, आप देख सकते हो कि इस स्लाइड में कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कंपाउंड के. जैसे कि बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस लेट मी टेल यू दैट द वेरी कॉमन कंपाउंड, योर कॉमन सॉल्ट, as you know that it is been formed from sodium chloride. So sodium is an element, chloride is an element. The symbol for sodium is Na and chloride is Cl. When it combines, what is formed? NaCl, and this is your common salt and it is a compound also. NaCl क्या है आपका? कंपाउंड. सो इस तरीके से द कंपाउंड्स आर बीइंग फॉर्म्ड एंड दे आर as you can see given in this slide also. Okay,
like examples of compounds: ammonium chloride. Ammonium chloride is formed from ammonium, which is NH4. Chloride is Cl, so the compound becomes NH4Cl. सिमिलरली शुगर कंपाउंड, इसका फॉर्मूला ये होता है. तो जैसा कि आप देख सकते हो कि किस तरीके से कंपाउंड्स बनते हैं. फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, उसका जो फॉर्मूला होता है. ओके. तो कंपाउंड्स आपके बनते हैं जब एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं केमिकली. जब एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करेंगे तब आपके कंपाउंड्स बनते हैं. एंड देयर इज अ न्यू सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड व्हेन अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, राइट? Now moving ahead, as you can see, some of the familiar compounds like table salt, which is sodium and chlorine, NaCl. वाटर आपने देखा H2O. एंड शुगर आपने अभी पिछली स्लाइड में ही देखा था, विच इज फॉर्म फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इट इज C12H22O11, है ना? तो जैसे कि आपने देखा शुगर कंपाउंड क्या है, C12H22O11. ठीक है. सो ये किससे मिलके बन रहा है? कार्बन से. यस, इट इज बीन फॉर्म फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. क्या था इसका फॉर्मूला? C12H22O11, राइट? कार्बन डाइऑक्साइड CO2. अब देखिए बेकिंग सोडा, इट इज NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है. तो जैसा आपने देखा ये सब आपके कुछ कंपाउंड्स हैं. NaCl, H2O, C12H22O11, CO2, NaHCO3. तो ये सब आपके कैसे बने हैं? आपके ये एलिमेंट्स को कंबाइन करके बने हैं, राइट? ये आपके क्या हैं? एलिमेंट्स हैं. ठीक है. अब ध्यान दीजिए, व्हेन मूविंग अहेड, रिमेंबर that your compounds remember that an element is made up of only one kind of atom. element किससे बनता है? एक kind of atom से. but your compound is a substance which is composed of two or more elements that are combined together to form a new substance, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी था, right? Now moving ahead to the next part, that compounds can be broken down into simpler substances. यानी आपके जो compounds हैं, they can be broken down into smaller or simpler substances by the different processes which you will be studying. ठीक है. आपने देखा आप एलिमेंट्स को ब्रेक नहीं कर सकते थे, लेकिन आप कंपाउंड्स को कर सकते हैं, राइट? ओके. नाउ वील बी studying about mixtures in the next video. Okay, I hope till here it must be clear to you all, and in case you have any doubt you can ask me, or any question related to this you can ask me in the class, or else you can personally drop your queries also. Thank you students, and have a nice day. And with this from mixtures we'll be doing in the next part of the video.